So today we are taking relation between rate of reaction and stoichiometric coefficient. ओके, कोएफिशिएंट. अब कोएफिशिएंट क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. पहले सी सिंपल, इफ वी आर टेकिंग a reaction N2 plus 3H2 reversibly gives 2NH3. Then what will happen? So here we can take the rate of reaction. Now we know that here nitrogen and hydrogen both are reactants. So we will write dN2 by dt. Bracket means concentration. Into bracket nitrogen N2 is written. That means concentration of N2, and D means change. So change in concentration of N2 with particular time. That means dN2 by dt equals dH2 by dt and then dNH3 by dt. Now here we have to mention that which reactant is taken and which product is taken. So here we can say that nitrogen and hydrogen both are reactants and ammonia is a product. So at that time here we have to write negative or positive sign. So negative sign indicates decrease in concentration and positive sign indicates increase in concentration. Negative मतलब with particular time limit concentration of N2 decreases, with particular time limit concentration of hydrogen decreases, with particular time limit concentration of ammonia increases. Next and most important thing, and it is here we have to mention that how many moles are taken. So N2 1 mole, so nothing is written. H2 3 moles, so these number of moles are written at denominator. Ammonia 2 moles, so 1 by 2, and तभी हम रेट तीनों का इक्वल लिख सकते हैं. चलो ये वर्क कैसे करता है, मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा. तो चलो हमें पता है if 1 mole of N2 is reacted, at that time how many moles of H2 are reacted? If 1 mole of N2 is reacted, with respect to it how many moles of H2 are reacted? 3. That means with a particular time limit, if 1 mole of nitrogen is used means decreased, so at that time 3 moles of H2 are used. तो अब अगर मुझे ये दोनों रेट इक्वल करने हैं तो फिर मैंने क्या किया, इसके 1 मोल तो इसके 3 मोल्स, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 3 by 3 1, तो 1:1 मतलब दोनों का रेट सेम हो गया. Again here with a particular time limit concentration of nitrogen decreases, with a particular time limit concentration of H2 also decreases, but with respect to 1 mole of N2 3 moles of H2 are used. So at that time if this rate is divided by 3, क्योंकि ये जितना यूज होगा उससे 3 टाइम्स होगा, अगर उसी को वही 3 से हम डिवाइड कर दे तो दोनों का रेट सेम हो जाएगा. ओके अब देखो अगर 1 मोल N2 यूज हो रहा है तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, मतलब अमोनिया का रेट भी डबल है, तो अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सब रेट सेम हो जाएगा. अब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. इन शॉर्ट चलो ये जो मैंने फंडामेंटल समझाया है, अगर ये आपको याद नहीं है फिर भी कोई चिंता मत करो,
क्योंकि हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जिसके जितने मोल्स आपको दिए हैं वो हम 1 अपॉन करेंगे तभी हम इक्वल लिख पाएंगे. So for that I am taking another example. Example is N2O5 gas reversibly gives 2NO2 gas plus half O2 gas. So here rate can be described like this. Rate equals minus dN2O5 by dt equals plus 1 by 2 dNO2 by dt equals plus अब 1 upon 1 by 2 तो वो 2 हो जाएगा dO2 by dt. Thus we have written the relation between rate of reaction and this stoichiometric coefficient. ओके तो जिसके जितने मोल वो हम 1 बाय करके लिखेंगे. दैट्स ऑल. बट अब यहां पे मैं और एक एग्जांपल लिख रहा हूं. चलो तो ध्यान रखना. CH4 gas plus 2O2 gas gives CO2 plus 2H2O. Okay, so that rate equals, here we will write minus d CH4 by dt equals minus 1 by 2 dO2 by dt equals plus d CO2 by dt equals plus 1 by 2 d H2O by dt. Whenever we are describing the rate of reaction, so at that time remember this thing. With respect to water we cannot represent the rate of reaction because concentration of water almost this decrease means this change is negligible. मतलब वाटर का जो रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो कभी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन वो नेग्लिजिबल चेंज इंडिकेट करता है. चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H plus gives 3Br2 plus 3H2O. Okay, so finally rate equals minus 1 by 5 dBr minus by dt equals minus dBrO3 minus by dt equals minus 1 by 6 dH plus by dt equals plus 1 by 3 dBr2 by dt. Again, with respect to water, we cannot represent the rate of reaction because the concentration, change in concentration of water is negligible. Water का concentration है 55.555555 55.56 मोलर और अगर चेंज होगा तो 56 की जगह पे 59 होगा अगर इंक्रीज होगा तो, अगर डिक्रीज होगा तो 55.50 होगा. सो मतलब ये 5 मोल्स, ये 1 मोल, ये 6 मोल्स ये यूज होते हैं और ये 3 मोल्स मिलते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू देम concentration of water will be negligible. So with respect to water we cannot represent the rate of reaction. मतलब कभी water लिखना ही नहीं है. That's it. अगर पूछा हो फिर भी हम नहीं लिखेंगे. ओके, अब यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना. रेट ऑफ रिएक्शन with respect to Br minus, it is only minus dBr minus by dt. If I write rate of reaction with respect to BrO3 minus, then it is minus dBrO3 minus by dt. If we write rate of reaction
with respect to H plus, then it is minus dH plus by dt. And finally, rate of reaction with respect to Br2, then it is plus dBr2 by dt. ओके, तो ये हमें याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस. तो फिर ये जो 5 था, ये 6 था, ये 3, सो इट इज ओनली द सेटलमेंट टू गेट द सेम रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब BrO3 माइनस जितना यूज हो रहा है उससे 5 टाइम्स यूज हो रहा है Br माइनस. तो इसका जो रेट है और इसका जो रेट है वो तो इससे 5 टाइम्स है, तो वही 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों सेम हो गया. अगर मेरे पास 5 रुपए है, ओके, और किसी और स्टूडेंट के पास 25 रुपीज है, तो मतलब कितने ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है, तो वही 5 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, सेम हो जाएंगे. बस वही थिंग हुई कि BrO3 माइनस अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो Br माइनस 5 मोल्स यूज हो रहे हैं. याद है ना 11th में स्टोइकियोमेट्री में हम ये लेते थे. तो BrO3 माइनस 1 यूज हो रहा है तो Br माइनस 5 टाइम्स यूज हो रहा है, तो वही 5 से डिवाइड कर दो, तो दोनों के रेट सेम हो गए. यहां पे भी 1 मोल यूज हो रहा है तो 6 मोल्स यूज हो रहा है, वही 6 से डिवाइड कर दो. 1 मोल यूज हो रहा है तो 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो फिर वही 3 से डिवाइड कर दो. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट, दैट विल बी ओनली साइन एंड देन d ऑफ दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय dt. ओके, अब ये यूज कहां पे होगा? अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि इफ rate of reaction with respect to ammonia is 6.6 multiplied by 10 raised to minus 4 molar second inverse, then calculate rate of reaction with respect to N2 and H2. चलो कैसे सॉल्व करें, ध्यान रखना. तो यहां पे तो विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया रेट आपको दिया है, तो पहले तो रिएक्शन क्या होगी, हाँ यहां पे रिएक्शन आपको लिखनी चाहिए, हाँ, और वो आपको दे देंगे, सो डोंट वरी. Okay, so rate of reaction will be minus dN2 by dt equals minus 1 by 3 dH2 by dt equals plus 1 by 2 dNH3 by dt. Now which term is given to you? So the term which is given to you, that is rate of reaction with respect to ammonia is given to you. That means you are given dNH3 by dt plus dNH3 by dt. Only this term is given to you. Okay. Now this term is given to you and you are asked this term. So we will compare minus dN2 by dt equals plus 1 by 2 dNH3 by dt. चलो अब ये पूछा है तो 1 by 2, अब प्लस dNH3 by dt क्या है, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to minus 4. चलो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा 3.3 into 10 raised to minus 4 मोलर सेकंड इनवर्स. चलो सिमिलरली फिर से अब ये दोनों हम कंपेयर करेंगे, सो दैट minus 1 by 3 dH2 by dt equals plus 1 by 2 dNH3 by dt. Okay, so if we make a subject to minus dH2 by dt, that is the rate of reaction with respect to H2, वो मतलब जो नंबर हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट पे यहां पे आएगा
3 by 2 and dNH3 by dt, and that is given to you 6.6 multiplied by 10 raised to minus 4. तो यहाँ पे होगा ये 3.3 और मल्टीप्लाई करो तो 9.9 into 10 raised to minus 4 again molar second inverse. Okay, so now we are taking one important point, that is the rate law and differential equation. Rate law and differential rate equation. Rate law, what is meant by this rate law? So here rate was described by change in concentration of reactants and products both one. Again here we have described the rate speed of reaction with respect to nitrogen, hydrogen, these are the reactants, and then ammonia, it's a product. So rate of reaction is described with respect to reactants and products both. So what is meant by rate law? If rate of reaction is represented by reactants only, then it is called rate law. अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है ये हम देख लेते हैं. So differential rate equation means if an equation is derived by the study of change in concentration of reactants and products both, in a wide range, then this equation is known as differential rate equation. मतलब वो स्टडी से मिला है किसका, रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन दोनों का, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों का कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वाइड रेंज में, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन लिया बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लिया, उसके बेस पे जो भी इक्वेशन डिराइव होगा दैट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. और अब हमें याद रखना है कि दिस इक्वेशन is derived experimentally. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही ये फाइंड आउट होता है. ओके, इक्वेशन टू इक्वेशन ये चेंज होगा. तो अब हम देखते हैं कि वैसे तो कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल H2 plus I2 reversibly gives 2HI. See, for this reaction rate equals K into H2 into I2. Any doubt? भाई किसी को कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि सबसे इजी है. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल H2 Br2 gives 2HBr. So for that rate equals
K1 H2 Br2 raised to 1 by 2 1 plus HBr 1 1 plus K2 into HBr by Br2 100% कंफ्यूज्ड ये कैसे आया? तो उसके लिए पहले एक लाइन देखते हैं. दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली. और एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है. तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है. फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो इक्वेशन है इट इज occurred in many steps, and in the slowest step, that is the rate determining step. जो slowest step होता है ना उसको हम बोलते हैं rate determining step. तो ये जो rate determining step है उसमें H2 के 1 मोल और Br2 के हाफ मोल रिएक्ट हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स हमें बस यही याद रखना है, बस ये इक्वेशन याद रखना है. दैट्स इट. कैसे आया तो उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया. ओके तो ये जो चीज है ना ये ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही प्रूव होती है कि किसके कितने मोल्स यूज होंगे, कितने कौन से स्लोएस्ट स्टेप में. यहाँ पे H2 के 1 मोल I2 के 1 मोल तो आपने डायरेक्टली देखो पावर 1 और 1 कुछ भी नहीं लिखते, दैट मींस 1 1. समझ में आ गया होगा. ओके लेकिन यहां पे भी 1 1 है, लेकिन यहां पे 1.5 आया. तो वो कैसे आया? तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आया. ओके चलो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं इन एब्सेंस ऑफ HBr. अगर स्टार्टिंग में HBr नहीं बन रहा है सो एट दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ HBr is 0. 0 by Br2 0 into K2 0 plus 1 1, so that rate equals K1 into H2 into Br2 raised to 1 by 2. चलो ये समझने के लिए थर्ड एग्जांपल हम लिख रहे हैं. 3ClO minus gives ClO3 1 minus and then 2Cl minus. चलो ये रिएक्शन यहां पे हो रही है. एक्चुअली दिस रिएक्शन इज अकर्ड इन 2 steps. In first step, first of all 2 ClO minus are combined together to give ClO2 1 minus and then Cl minus. And in a second step, तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि यहां पे ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है और पहले स्टेप में 2 ClO माइनस पहले कंबाइन होंगे, हमें मिलेगा ClO2 1 माइनस एंड दैट दिस ClO1 माइनस इज कंबाइंड विद थर्ड ClO माइनस टू गिव ClO3 1 माइनस एंड Cl माइनस. अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगा. तो हमें एक्सपेरिमेंटली जो मैंने लिखा है ना कि वो इक्वेशन हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं पता है? तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं विच इज द स्लोएस्ट स्टेप. तो इन दोनों में से ये जो फर्स्ट है ना दिस वन इज द स्लो स्टेप एंड दिस वन इज द फास्ट स्टेप. और ये जो स्लो स्टेप है उसमें कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? दैट इज 2 मोल्स. चलो इसका सपोज रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो रेट इक्वल्स हम लिखेंगे K1 इंटू ClO माइनस का स्क्वायर. तो भले ही टोटल 3 मोल्स यूज हुए हैं लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें 2 मोल्स यूज हो रहे हैं इसलिए 2 आएगा. ऊपर देख लो अब यहां की बारी. पहले यहां पे H2 मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा जिससे हमें H डॉट मिल रहा है. सिमिलरली Br2 तो सिंगल Br डॉट हमें मिलेगा. तो जो H2 पूरा मॉलिक्यूल था उसके साथ एक डॉट Br ज्वाइन हो रहा है, हमें मिलेगा HBr एंड देन H डॉट.
फिर ये जो HBr है वो Br2 के साथ कंबाइन होके H डॉट Br डॉट, ये अलग होगा, ये भी अलग होंगे। ओके, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन उसके अंदर हो रही है। तो ये सब पता कैसे चलता है? तो उसके लिए एक मेथड है फ्लैश फोटोलिसिस। ओके, तो ये फ्लैश फोटोलिसिस मेथड से पता चल जाता है कि कौन से रिएक्टेंट्स कब यूज हो रहे हैं। तो इन सब में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा था पता है? ये वाला। दिस वन इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो उसमें H2 के कितने मोल्स? 1 मोल यूज हो रहे हैं। Br2 के कितने? हाफ। देखो Br डॉट मतलब हाफ Br2। दैट्स व्हाई हियर रेट इक्वल्स K1 into H2 into Br2 raised to 1/2। ये 1 प्लस करके क्यों लिखा पता है? क्योंकि यहां पे HBr वो जो बन रहा है ना वो खुद यूज हो रहा है। तो इससे क्या होगा? HBr का रेट डिक्रीज हो जाएगा। और वो HBr किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Br2 के साथ, वो भी लिखा है। लेकिन ये जो टर्म है ना वो 1 प्लस करके लिखी है। क्यों पता है? क्योंकि देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज ड्यू टू दिस रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन बहुत कम स्केल में हो रही है। अगर इसके 10 मोल्स मिल रहे हैं तो ये 0.02 मोल्स में ये रिएक्शन होगी। बस मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन डिनोमिनेटर में 1 प्लस। जैसे बोल रहा हूं मैं, यहां पे 1 प्लस करके क्यों लिखा? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस करके लिखा। मेन ये दोनों टर्म्स हैं। और अगेन हाफ क्यों लिखा? क्योंकि जो स्लो स्टेप था उसमें हाफ Br2 यूज हो रहा है। पूरा Br2 तो उसमें से 2 Br मिल रहे हैं, और एक Br का मतलब हुआ हाफ Br2, वही हुआ ना। दैट्स व्हाई। चलो, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ओके, एक रेफरेंस बुक में से पढ़ के मैंने ये करवाया है। अब ऐसी कितनी सारी रिएक्शंस होंगी? आंसर इज मेनी, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है। चलो, 3 तो उसमें से हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अभी। N2O5 gives 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। यहां पे रेट इक्वल्स आएगा K into N2O5 raised to 1. Q? Here also a reaction is occurred in 2 steps. This N2O5 is converted into NO2 and NO3 in first step. In second step, NO3 is combined with another N2O5 molecule to give 3NO2 and O2. And by addition of these two reactions, we will get this equation. But here, number of moles of N2O5 are reacted are 2. But here we are writing only 1. Why? What's the reason? Yes, the reason is first step is the slow step. Okay, and in slow step 1 mole is reacted. That's why power is 1. So this power doesn't depend upon the stoichiometric coefficient. मतलब ये पावर कितना आएगा तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं है कि कितने मोल्स यूज होंगे। और एक इसका एग्जांपल अभी हमने देखा था, 5Br minus plus BrO3 1 minus plus 6H plus gives 3Br2 plus 3H2O. Here we can write rate equals K into Br minus into BrO3 1 minus into H plus उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया? यहां पे 1 1 क्यों आए? क्योंकि भले ही इसके 5 1 और 6 मोल्स यूज हो रहे हैं, लेकिन बट इन स्लोएस्ट स्टेप 1 मोल ऑफ Br minus 1 मोल ऑफ BrO3 1 minus and 2 moles of H plus are reacted. ओके, तो अब देखो यहां पे ये जो पावर लिखते हैं ना, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to Br minus, that is 1. Order of reaction
with respect to BrO3 1 minus, that is also 1, and order of reaction with respect to H plus is 2, and total order of reaction is 1 plus 1 plus 2, that is 4. Okay, so this is the total order of reaction. So with respect to Br minus is 1, with respect to BrO3 1 minus is 1, with respect to H plus is 2, and total order हुआ इन तीनों का सम, मतलब जो पावर लिखते हैं ना, that is order of reaction. तो डेफिनेशन क्या होगी? ये सब इक्वेशन, इनका नाम क्या है याद करो. Yes, it is differential rate equation. Differential rate equation. और यहां पे जो K लिखा है that is specific rate constant. चलो अब दोनों की डेफिनेशन हम लिखते हैं. फर्स्ट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, उसका सिंबल है कैपिटल K. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी यही सिंबल था K. व्हेन concentration of all the reactants are taken 1 molar, then rate of reaction is known as specific rate constant. मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कोई भी हम देखते हैं और उसमें अगर हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया तो उस टाइम का जो रेट होगा दैट इज K. पूरा इक्वेशन 3 टर्म्स है टोटल. तीनों टर्म्स का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया. 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1:1 1:1 1:2 ओवरऑल 1 होगा. सो एट दैट टाइम ये पूरी टर्म 1 हो गई. तब बचा क्या पता है? रेट इक्वल्स K. ये नहीं कोई भी इक्वेशन हम देखते हैं, चलो वो H2 plus Br2 वाला देखते हैं तो उसमें भी देख लो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, तो एट दैट टाइम K1 होगा. चलो ये तो ऑलमोस्ट कट हो गया, तो ये जो K मिलेगा हमें दैट इज K. सिंपल. ये इक्वेशन लिया 1 मोलर 1 मोलर देन K. ये इक्वेशन ले लिया तो 1 मोलर 1 का स्क्वायर 1, तो रेट इक्वल्स K. तो फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं. इफ द concentration of all the reactants are taken 1 molar, at that time rate of reaction is known as K. K means specific rate constant. Okay, चलो तो ये हुआ specific rate constant. Next is order of reaction. तो सिंपल से बताए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसको बोलते थे? वो पावर को. पावर हम किस में लिखते थे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को उसमें ही लिखते थे ना. तो डेफिनेशन क्या होगी? इन अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन द पावर ऑफ, उसके लिए दूसरा भी वर्ड है एक्सपोनेंट ऑफ concentration of reactant or total sum of exponents of concentration of reactants. या तो अगर सिंगल हुआ तो उसका पावर, और अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट्स है तो सबके पावर का सम is called order of reaction. मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. टोटल किसके लिए? जो ब्रैकेट में लिखा है उसके लिए. मोर देन 1 हुआ तो यहां पे लिखते थे ना हम. तो ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है तो उसमें मोर देन 1 टर्म्स है. तो
तीनों का पावर और तीनों का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल। अगर सिंगल ही है तो उसका जो पावर होगा that is the order of reaction over। तो फिर से definition, in a differential rate equation the power that is the exponent of the concentration of reactant or the total sum of the exponents of the concentration of reactants, यहाँ पे reactant और यहाँ पे reactants, तो वो total sum है order of reaction over। ओके चलो, तो फिर ये आज का लेक्चर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट था ये केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ओके तो ये सब आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट ऑफ के लेंगे और मॉलिक्यूलरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लेंगे। ओके तो वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ऑर्डर, ये सब डेफिनेशन और ये सब टर्म्स सॉल्व करो। एक वर्कशीट दे रहा हूं वो भी आपको सॉल्व करके कंप्लीट करनी है।